Hi, dear students, how are you? In the last lecture, we discussed about the shape of S orbital. Today, we are going to discuss about the shape of P orbital. Boundary surface diagram for 3 2p orbitals. जो सबसेल 2p होता है इनका 3 ऑर्बिटल्स आ रहा है. यस, सबसेल L इक्वल टू 1 मीन्स P होगा. आर शॉन इन फिगर. एक्चुअली shape of the P orbital is a dumbbell. It's not a spherical like S orbital. इसकी तरह वो स्फेरिकल नहीं होता. The nucleus at the origin here, unlike s orbital, ये s orbital की तरह नहीं होता. Boundary surface diagram are not spherical. Instead, each p orbital consists two sections called lobes. Yes, ये वाला p x axis पे आ रहा है. Here this one on y axis and here on z axis. इसका दो सेक्शन होता है. यहाँ से कोई इमेजिनरी प्लेन पास होगा. So either side which is located, this is one lobe, this one another lobe. There are in either side of the plane that passes through the nucleus. Yes, they passes throughout the nucleus. The probability density function is 0 on the plane where two lobes touch each other. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की probability 0 होगी. सो यहाँ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटीज रहेगी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटीज फॉर पी ऑर्बिटल 0 हो जाएगा. यहाँ पे 90% होगा. सो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज अ डम्बेल. द साइज, shape and energy of the three orbitals are identical. आइडेंटिकल क्या होता है? सेम रहेगा. इन द सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1 मीन्स 2p होगा. सो 2px, 2py एंड 2pz. इन तीनों का साइज सेम रहेगा. शेप भी सेम रहेगा. एंड एनर्जी ऑल्सो सेम ऑफ द 2px, 2py and 2pz. They differ, however, in the way the lobes are oriented. Only one difference होगा. ये वाला दो लोब x एक्सिस पे लाइन डाउन रहेगा. ये वाला y एक्सिस पे और ये वाला z एक्सिस. Only main difference is orientation रहेगा. Lobes may be considered to lie along the x-axis, y-axis and z-axis. They are given the designation as a 2px, 2py and 2pz. It should be understood. However, there is no simple relation between the values. Whenever L is 1, so ml should be minus L, 0 n plus L. So minus 1 0 n plus 1 होगा. There are three values. Which one? minus 1, ये वाला minus 1, ये वाला 0, ये वाला plus 1. Sometimes we can take 0, here minus 1, here plus 1. Here minus 1, here plus 1 and here minus 1 we can take sub. इसका कोई रिलेशन नहीं होता. अदरवाइज 0 ले लिया, यहाँ -1 यहाँ +1 हो जाएगा. There is no interrelation.
किसी एक का साइन -1, एक का +1 तो एक का 0 रहेगा, विच इज नॉट पर्टिकुलर। ये 2px वाला -1 हो सकता है, +1 और 0। सो तीनों में से कोई एक वैल्यू दे सकते हैं, विच इज नॉट पर्टिकुलर। यहाँ पे -1 दे दिया तो 0 n + 1। इफ यहाँ +1 दे दिया, -1 0, here 0, so here +1, here -1 दे सकते, like this। सिंपल रिलेशन नहीं होता। वैल्यू ऑफ ml 3 रहेगा, मीन्स 3 डायरेक्शन x y z में ओरिएंटेड रहेगा, इसलिए ये ml वैल्यू -1 0 1 +1 रहेगा। नाउ अंडरस्टूड। एक्चुअली व्हाट हैपन्स in the first orbit, you can see in the first orbit there is only one orbital. This one first orbit, there is only one, so 1s रहेगा and shape of it is a spherical. Okay. In the second orbit, there is 1 2s, so 2s वाला spherical हो जाएगा। Then 2p, so 2p are 3, here is x axis, here is y and here is z। So actually ये वाला लॉब रहेगा, ये वाला 2px, here is 2py and here is 2pz। on x axis ये वाला लॉब, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के प्रोबेबिलिटीज रहेगा, नॉट इन न्यूक्लियस। ये वाला y हो गया, सो 2py, ये वाला 2pz हो गया। अंडरस्टूड। सो एक्चुअली क्या होता है, x y एंड z एक्सिस होता है, सो ये वाला डम्बल यहाँ पे px, ये वाला y py और ये वाला z is pz। okay, in the second orbit it will be 2px 2py 2pz। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने का प्रोबेबिलिटीज ज्यादा रहेगा, दिस इज द लॉब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटीज नहीं रहेगा, यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे रहेगा। Now understood? So P are 3, Px, Py, Pz, and all the P contains having 2 electrons. So total filling capacity of P is 6 electrons. In the S there are only 2 electrons. So 2s का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। यहाँ पे डिफरेंट दिखाया हुआ है, एक्चुअली क्या होता है, तो Px P 3 होता है और तीनों 3 एक्सिस पे लाइन डाउन रहता है। सो 2px 2py एंड 2pz इन विच इज वेक्टर डायरेक्शनल। वेक्टर क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन डाउन रहता है। सो s ऑर्बिटल इज नॉट डायरेक्शनल बट p is directional. In third orbit the same, 3px 3py and 3pz रहेगा, but इसका साइज बिग हो जाएगा and energy also increase हो जाएगा। For our purpose it is sufficient to remember that because there are 3 possible value of ml। जो p ऑर्बिटल होता है उसका l का वैल्यू 1, so obviously ml का वैल्यू 3 रहेगा, which indicates that p subcell का 3 orbitals are right। Understood? There are 3, therefore 3 p orbitals whose axes are mutually
ये वाला x एक्सिस होता है, ये वाला y and ये वाला z, and all of these are perpendicular means 90 एंगल पे रहेगा। ये वाला px, py and pz are perpendicular at 90 degree एंगल पे रहेगा, which is like this। ये वाला px, then py, px, py and pz. One dumbbell is here, one dumbbell is here and one is here, like this. 90 degree means perpendicular. Like s orbitals, p orbital increase in size and energy with increase in principal quantum number. We discussed in last lecture, in the s orbital क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, सो साइज भी इंक्रीज हो रहा है। ये वाला 1s हो गया, दिस वन इज 2s, दिस वन इज 3s, ये वाला 4s हो जाएगा, लाइक दिस। सो हियर इज 2p x, here is 3px, here is 4px। p ऑर्बिटल होता है वो सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होगा, सो ये वाला 2px होगा, ये वाला 3px, ये वाला 4px, उसका क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, साइज एंड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 4pz रहेगा, ये वाला 3p रहेगा, ये वाला 2p रहेगा। तो प्रोबेबली साइज, यस, 2s का साइज छोटा रहेगा, इससे बड़ा 3p का, इससे बड़ा 4p हो जाएगा, और साइज इंक्रीज होगा, साथ में उसका एनर्जी भी इंक्रीज होगा। Further, like s orbital, probability density function for p orbital also pass through value 0। और यहाँ पे जो लोब होता है either side, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट रहेगा। Beside at 0 an infinite distance, as the distance from the nucleus increases, the number of nodes are given by n-2। जैसे s ऑर्बिटल में नोड होता है, वैसे ही p ऑर्बिटल में भी नोड रहेगा। In the 1s orbital there is no node, 2s में एक ही नोड रहेगा। For s orbital node इक्वल टू n-1, यहाँ 3s रहेगा, सो 1 and 2 नोड देगा। बट फॉर p ऑर्बिटल नोड इक्वल टू n-2 रहेगा। यस, दिस इज नोड फॉर p ऑर्बिटल n-2, सो 2p मीन्स n इक्वल टू 2, सो 2 - 2 0, 2p में कोई नोड नहीं होगा, बट 2p और 3p के बीच यहाँ पे वेकेंट स्पेस आ रहा है, सो 3 - 2 1 नोड रहेगा। यू कैन सी ये वाला न्यूक्लियस हो गया, ये वाला 2p, इसके बीच कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज रहेगा, यहाँ पे नोड नहीं होगा, और 2p और 3p के बीच एक वैकेंट स्पेस आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगा, सो n-2 लिया हुआ है। 3p में 1 नोड होगा, फॉर 4p 1 and 2 नोड होगा, 3p और 4p के बीच एक ब्लैंक रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड। ये वाला रेडियल नोड का फॉर्मूला हो गया। रेडियल नोड for s orbital n-1, for p orbital n-2, if a question is asked in 3p orbital radial node,
So 3p means n equal to 3. So 3 minus 2 equal to 1 नॉट रहेगा. If for 5p asked, so 5 minus 2 here is 3. 3 नॉट रहेगा. In the 5p में you can see 1, 2 and 3 नॉट रहेगा. For 3p orbital 1 नॉट for 3p and 2 for 4p. 4p में क्या रहेगा? यह 4 minus 2 so 2 रहेगा. 2 radial नॉट देगा and so on. Now this is the shape of a p orbital which is vector directional and इसका shape रहेगा वो डम्बेल कहलाएगा. Shape of the p orbital is a dumbbell. Now shape of d orbital for l equal to 2. L equal to 0 means S. L equal to 1 means P. L equal to 2 means D. Subcell रहेगा. The orbital is known as the d orbital. And the minimum value of principal quantum number has to be 3. Yes, sir. In first orbit there is only one s. In the second orbit 2s and 2p. In n equal to 3 there should be 3s. Yes, so the orbitals start with the quantum number 3. First और second orbit में d orbital नहीं रहेगा. In the third orbit there is d orbital. As the value of L cannot be greater than n minus 1. Yes sir. L का value n पे depend करेगा. Value of L is equal to 0 to n minus 1. So here n is 3. So 0 to 3 minus 1 means 0 to 2. 0, 1 and 2 रहेगा. So there are 3 values of L. So this sentence क्या कहता है? L का value n के हिसाब से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो गया. सो l का वैल्यू 0. सो ओनली s रहेगा. n का वैल्यू 2 होगा तो l का वैल्यू 0 और 1. सो s n p ही रहेगा. n का वैल्यू 3 हो जाएगा. सो l का वैल्यू 0, 1 and 2 रहेगा. So here is 3s, 3p and 3d रहेगा. L का वैल्यू n से छोटा रहेगा. So in third orbit d is present और L का वैल्यू 2 होगा तो वैल्यू ऑफ ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर R5 देगा. Using this formula ml equal to minus L 0 n plus L. So when we take L equal to 2, so minus 2 minus 1 0 plus 1 n plus 2. Total values are 5 here. It means our d orbital is lying down in 5 different directions. So d 5 orbitals there are for L equal to 2 and thus there are 5d orbitals. And boundary surface diagram of these 5d orbital are shown in figure 2.15. Shape of d orbital is a double dumbbell. Shape of the p orbital is dumbbell. Here is double dumbbell. In the xy plane, how to draw? X-axis, y-axis and z-axis. Okay. Then after
parallel to line to x axis and parallel to line to y axis. सो ये वाला एक्स वाई प्लेन हो गया. यहाँ पे एक डम्बेल रहेगा, दूसरा यहाँ. सो दोनों डम्बेल एक्स वाई प्लेन पे आ रहा है. सो ये वाला डी एक्स वाई होगा. ये क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला वन लॉब, ये वाला अनदर लॉब. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक ही डम्बेल में रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा. ओके. इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेगा लाइक दिस. पी एक्स में दो, पी वाई में दो और पी जेड में दो रहेंगे. यहाँ डी एक्स वाई में दो ही रहेंगे. यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ नहीं आएगा. डी वाई जेड जो वाई एक्सिस होता है उसका पैरेलल दो लाइन, जेड एक्सिस से पैरेलल दो लाइन. और ये वाला प्लेन हो गया, यहाँ पे डम्बेल आ रहा है और यहाँ पे लाइक दिस. सो ये वाला डी वाई जेड हो गया डबल डम्बेल. डी जेड एक्स, ड्रॉ द सिमिलर पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस देन जेड एक्सिस. सो ये वाला जेड एक्स प्लेन हो गया, वहां पे एक डम्बेल और दूसरा यहाँ पे रहेगा. सपोज वन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे नहीं आएगा. सपोज वन इज हियर तो यहाँ पे नहीं आएगा. डबल डम्बेल रहेगा. हियर इज, ये तीन ऑन एक्सिस पे आ रहा है, सॉरी ये तीनों ऑन प्लेन पे आ रहा है. एक्स वाई प्लेन, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन पे आ रहा है. ये वाला एक्सिस पे रहेगा. वन डम्बेल इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वन डम्बेल, ये वाला स्क्वायर ओनली सिंबल, नथिंग एल्स, डैश वाई स्क्वायर. एक डम्बेल एक्स एक्सिस पे रहेगा तो दूसरा वाई एक्सिस पे रहेगा. सो ये वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा. यस. देन डी जेड स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे मूव करेगा. सो दूसरा स्फेरिकल रहेगा, सर्कुलर रहेगा around the z axis. So out of 5, 4 are double dumbbell and one is irregular double dumbbell रहेगा. ये वाला irregular double dumbbell रहेगा क्योंकि एक डम्बेल नहीं होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है. ये डी जेड स्क्वायर. So total d orbitals are 5. We designate it dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. Total 5 orbitals दे रहा है d orbital. The 5 d orbitals are designated as dxy, dyz, dzx, dx square dash y square and dz square. The shape of the first four d orbitals are similar. You can see ये चारों डबल डम्बेल दे रहा है shape. Whereas that of the fifth one, dz square, is different from others. ये चारों का शेप सेम रहेगा डबल डम्बेल. ये वाला इरेगुलर डबल डम्बेल होगा. बट ऑल 5d ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी. ये 5, ऑल दी 5d ऑर्बिटल्स होता है उसका एनर्जी सेम रहेगा. 3dx, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx square dash y square and 3dz square. ये पांचों का सेम, थोड़ा सा ये चारों का सेम बट एनर्जी सेम रहेगा. The d orbital for which n is greater than 3, so obviously इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. Also shape similar to 3d but differ in energy and size. जो 3d में 5 आ रहा है वैसा ही 5 ऑर्बिटल 4d में आएगा.
वैसा ही 5D में आएगा, बट उसका एनर्जी एंड साइज इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस वन सेकेंड, and this one is our third orbit. So third orbit क्या होगा? 3s, 3p and 3d. So here 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx square minus y square and 3dz square. All the 5d is lying down in orbit number 3. So उसका एनर्जी सेम रहेगा. But whenever in 4D साइज इससे बड़ा हो जाएगा और एनर्जी इंक्रीज होगा. इन 5D इससे भी बड़ा होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. लाइक दिस. 3D से ज्यादा साइज बड़ा 4D का, 4D से ज्यादा 5D का. शेप सेम आएगा ऑल दी 5 3D का, एंड ऑल दी 5 4D का शेप सेम रहेगा, बट उसका साइज एंड एनर्जी इंक्रीज होगा. जो 5 5D होगा, लाइक 5dyz, 5dxy, उसका शेप सेम रहेगा, बट साइज एंड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. लाइक दिस. Beside the radial nodes, probability density function is 0. Radial node क्या होता है? Probability density function for the NP and ND are 0 at the planes passing through nucleus. जो अपना p orbitals होता है, which is passing throughout the nucleus. So यहाँ न्यूक्लियस के पास कोई नोड नहीं होगा. In the px there is no node. You can see in the p, suppose 2px is taken. So ये वाला p, इसका 1 lobe and another 2 lobe passing throughout the origin nucleus रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ px ऑर्बिटल, जो px ऑर्बिटल रहेगा, सो ये वाला x एक्सिस, ये वाला y और ये वाला z होगा. सो इसके बीच में से कोई एक प्लेन, नोडल प्लेन पास हो रहा है, दैट इज द एंगुलर नोड कहलाएगा. जहां पे इलेक्ट्रॉन का ये वाला x एक्सिस, अंडरस्टूड, ये वाला y और ये वाला z हो गया. सपोज अपना 2 लोब यहाँ पे px लेते हैं. इन द px क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रहेगा और दूसरा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा. सो ये दोनों लोब के बीच में से पैरेलल टू लाइन टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू लाइन टू z. सो ये वाला प्लेन हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने का प्रोबेबिलिटीज 0 आ रहा है. सो ये वाला xy प्लेन होगा, इज अ नोडल प्लेन. ये वाला xy प्लेन देगा. सो दैट इज वन नोडल प्लेन रहेगा. नो हियर yz, ये वाला प्लेन क्या होगा? z एक्सिस और y. सो ये वाला yz प्लेन नोडल रहेगा. If pz is taken, x, y and z. If pz, one lobe on here and one here, यहाँ probability density इलेक्ट्रॉन 0. सो x एक्सिस को पैरेलल 2 लाइन ले लिया. सो pz ऑर्बिटल x पे 2 लाइन, y एक्सिस 2.
सो ये वाला जो प्लेन होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का, ये लॉब के बीच में से प्लेन पास होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है, दैट इज द नोडल प्लेन एंड विच इज द एंगुलर नोड कहलाएगा। इन द केस ऑफ dxy ऑर्बिटल, ये वाला dxy ऑर्बिटल ले लिया, देयर आर टू नोड्स। हाउ? ये वाला xy प्लेन पे लाइन डाउन है, सो ये दोनों लोग इस तरह और दो इस तरह, इसके बीच में से ये वाला पैरेलल टू y, यहां से अपना yz पास हो रहा है, यहां से ये yz पास हो गया, और दूसरा ये दो और ये दो सेपरेट होने के बाद ये x z प्लेन पास होगा, दोनों में zx कॉमन रहेगा लाइक दिस, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, दोनों में z एक्सिस कॉमन रहेगा, सो दो नोडल प्लेन रहेगा, ये दोनों लोब के बीच में से जो पास हो रहा है, सो एक एंगुलर नोब देगा। एंगुलर यहाँ पे दो, यहाँ दो में से एक पास होगा, एक कागज व्हेन वी टेक वन पेपर, यहाँ दोनों के बीच में से ये दो सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से ये दो नोडल प्लेन देगा। इन केस ऑफ dxy orbital there are two node plane passing through origin and bisecting the xy plane। जो xy प्लेन होता है उसका दो डिवीजन करेगा, एक ये वहां से पास होगा और ये यहाँ से पास होगा। बाइसेक्टिंग मीन्स दो भाग करेगा, यहाँ से और यहाँ से एक प्लेन पास होगा, ये वाला 1 ये वाला 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ डेंसिटी 0 हो जाएगा, सो एक प्लेन यहाँ से पास हो रहा है और ये यहाँ से, सो ये दो देगा, यहाँ से सिर्फ एक ही प्लेन पास होगा, सो p ऑर्बिटल का एंगुलर नोड एक ही होगा और सभी d का एंगुलर नोड 2 देगा। and here zx is common, these are called angular node and is given by L। L का वैल्यू ऑर्बिटल का एंगुलर नोड दे रहा है, L इक्वल टू 0 मीन्स एंगुलर नोड 0, इसका कोई एंगुलर नोड नहीं होता है ऐसा। P L का वैल्यू 1 होगा, सो एक का एंगुलर नोड दे रहा है। फॉर D L का वैल्यू 2, सो दो एंगुलर नोड दे रहा है। फॉर F L का वैल्यू 3, सो इट गिव्स 3 एंगुलर नोड दे रहा है। एंगुलर नोड एंगुलर क्वांटम नंबर देगा 1 फॉर P, क्योंकि P का वैल्यू 1 होता है, सो एक ही एंगुलर नोड देगा, ये वाला एंगुलर नोड होगा। दो लोब में से बीच में से एक प्लेन पास हो रहा है, यहाँ लोब 4 आ रहा है, सो ये दो लोब और ये दो लोब के बीच में से, और ये दो लोब और ये दो लोब में से दो नोड दे रहा है। इन F which is irregular in shape, so which is not given in our book shape of p orbital, but remember in the F orbital there are 3 lobes derived into 4 d orbitals and this is called the angular node। जो लोब के बीच में से पास हो रहा है वो एंगुलर नोड कहलाएगा। इस ऑर्बिटल में कोई लॉब ही नहीं होता है, सो उसका कोई एंगुलर नोड होता नहीं है। अंडरस्टूड? P में होगा, D में होगा। नोड दो तरह के होते हैं, वन इज एंगुलर नोड एंड दूसरा रेडियल नोड। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स are given by n-1, which is sum of angular node and radial node. If radial node
is asked. So we have to use this formula n minus L minus 1. Suppose for 2s ऑर्बिटल रेडियल नोड क्या होगा, इनका वैल्यू 2, फॉर एस एल का वैल्यू 0, हियर इज माइनस 1, सो 1 रेडियल नोड मिलेगा. इफ एंगुलर नोड इज आस्क्ड फॉर एस ऑर्बिटल for 2s, so here L का वैल्यू 0, so यहाँ पे एंगुलर नोड फॉर 2s 0 हो जाएगा. Now another question for 3d for 2p for 2p for 2p for p L इक्वल टू 1 हो जाएगा. रेडियल नोड ये 2, L इज 1, सो रेडियल में 0 होगा. ये 2p का एंगुलर नोड 1 रहेगा एंड टोटल नोड इज n माइनस 1, सो 2p में 2 माइनस 1, सो इक्वल टू टोटल नोड 1 रहेगा. लाइक दिस. Understood? Now bye. We will meet in our next lecture. Till then, bye.